जी, श्री समीर बेंद्रे जी आने के हैं, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन शीला देशमुख जी और हमारी इनर व्हील की अध्यक्षा डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी राजन जी। अतिथि देवो भव हमारी परंपरा है। अतिथियों का हम एक प्रेमपूर्ण स्वागत करेंगे। आई इनवाइट राजन मैम टू अकॉर्ड वेलकम टू डॉक्टर अजय मेहता जी with a floral sapling. Emotions are best expressed through flowers. I request ma'am to welcome Dr. Suchitra Mehta ji with a floral sapling. Thank you, ma'am. I call upon District Chairman Sheila Deshmukh to accord welcome to Archana Sakhe Das ji. With a floral sapling. Thank you, Sheila ji. Sameer Bendre ji has come. Okay, we proceed ahead. माननीय अतिथियों से निवेदन है, दीप प्रज्वलन द्वारा आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। प्रज्वलन हमारी संस्कृति का एक बहुत अहम और बहुत ही सुंदर हिस्सा है। हम इस ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ये मंगल कार्य को निर्विघ्नता से पूर्ण करे। तमसो मा ज्योतिर्गमय, let light dispel the darkness. चलना है हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, पृथ्वी से आकाश की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर। उस परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा को नमन करते हैं। धन्यवाद सभी अतिथियों का। Now I invite on the stage board members of CARF. Board members are Archana Das, Shantanu Das, जयंत गुलकरी, डॉक्टर सुचित्रा मेहता, श्री अविनाश जी संगवई। What is CARF? CARF means Cancer Awareness and Rehabilitation Foundation. CARF is a NGO. Brochures are distributed by CARF. To become a member, QR code and bank details are given on the back side. CARF is a registered organization passionately dedicated to the awareness of cancer within society and the rehabilitation of cancer survivors. It is managed by a dedicated team comprising cancer survivor, cancer specialists, and compassionate social workers. The chairman is Archana Sakhe Das. Archana is not just a leader but a survivor who triumphed over breast cancer, and for the past 16 years she has dedicated her life to the cause, tirelessly working towards cancer awareness and rehabilitation. Secretary is Shantanu Das. He is the driving force behind awareness initiatives. Treasurer is Jayant Kulkari. I invite Dr.
I invite Dr. Rajan ma'am to accord welcome to Shantanu ji with a floral sapling. तालियों में बजाते रहिए, प्लीज कंजूसी मत कीजिए. I invite District Chairman Sheila Deshmukh ji to accord welcome to Jayant Gurkari ji with a floral sapling. Sheila Deshmukh ji. Trustee is Dr. Suchitra Mehta. She is a director and head of psycho-oncology at HCG NCHRI Center, Nagpur. An author of 2 books, she is involved in conducting cancer awareness camps. I welcome you, ma'am. Trustee is one more, Shri Avinash Ji Sangwai. Has he come? Okay, we move ahead. I invite Shantanu ji to announce formal inauguration of CARF. आज मुझे अत्यंत खुशी हो रही है क्योंकि एक सपना आज हमारा साकार हो रहा है. मैं और अर्चना ने बहुत पहले सपना देखा था कि एक संस्था ऐसी हो जिसके साथ हम कैंसर रोगियों के लिए हम काम कर सके. हालांकि पिछले कई वर्षों से हम अवेयरनेस का काम कर रहे थे, लेकिन एक संस्था के साथ जो कि आज ये शुरू हो रही है कार्य, इसके साथ में हम और अच्छे तरीके से सुनियोजित तरीके से हम ये काम कर सकेंगे. इसके साथ अवेयरनेस के साथ साथ हमने रिहेबिलिटेशन का भी काम शुरू किया है, यानी कि पुनर्वसन. ये इसका भी काम आज हम शुरू कर रहे हैं और ये सब कामों में आपके सहयोग के बिना ये पॉसिबल नहीं है. इसलिए आप सबका सहयोग हमें जरूरी है. हमारे साथ जुड़िए. आप लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोग ये बुकलेट है, इसमें पीछे ये QR कोड दिया हुआ है, बैंक डिटेल्स है. इसके लिए 1000 रुपए हमने मेंबरशिप फीस रखी है. आप पेमेंट करके हमारे मेंबर्स बन सकते हैं और हमारे हर काम में सहभागी हो सकते हैं. आज मैं अत्यंत खुशी के साथ आप सबके शुभकामनाओं के साथ और हमारे संस्था के चेयरमैन अर्चना साठे दास की अनुमति से कार्फ के शुभारंभ की घोषणा करता हूं. थैंक यू. जय हिंद. To come forward, let us capture this spectacular moment with a group photograph. Thank you. अब मैं आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर अजय मेहता जी से निवेदन करती हूँ वो उद्बोधन स्वरूप 2 शब्द कहकर हमें अनुग्रहित करें. Good evening, everyone. I am in this field of cancer for last 35 years. And one thing which is most important in treatment and management of cancer is not the treatment part, but the awareness part. Because if we are well aware, we can catch cancer in its very early stage. And then the treatment part comes. Today, I am not going to give a lecture on cancer, because I have not come here to give a lecture. I have come here to listen to Archana Das, who was not my patient anymore. She is not my patient anymore. She is not a cancer survivor. She is a cancer fighter and a winner. She is a winner. Believe me, I have known her for the last almost 17, 18 years. And the only thing which I can think about her is her determination, willpower and jiddi. बहुत जिद्दी लड़की है ये. You won't believe, yesterday evening she collapsed. She had could be sunstroke little bit, dehydration, whatever.
She fell down. She was taken to Dr. Rajan's hospital, and I get a phone call in the night. I said, if you feel okay, go ahead. Otherwise, health is important. We will postpone the program. नाही म्हणे मी करणारच. जिद्दी पहा. आता कॅन्सर ज्याच्या समोर हारला तर डिहायड्रेशनची काय हिंमत आहे. शी इज अ विनर. बिलीव्ह मी, शी इज अ विनर. And she has a Shantanu, her husband. What a support he gives. They go from one town to another. They used to do a lot of awareness programs. And as doctors, I can assure you, members of such association, and I'm happy that the Inner Wheel has taken. Shri Avinash Ji Sangwai has arrived. I invite Dr. Rajan ma'am to accord welcome to Shri Avinash Ji Sangwai with a floral sapling, flowers. Thank you, ma'am. Thank you, sir. महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. स्वागतम सुस्वागतम. श्री रंगदेवता आणि रसिक प्रेक्षकांना विनम्र अभिवादन करून कॅन्सर अवेअरनेस अँड रिहॅबिलिटेशन फाउंडेशन नागपूर आणि इनर व्हील क्लब ऑफ नागपूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने सहर्ष आणि सविनय सादर करीत आहोत एक हिंदी दीर्घांक मैं अर्चना. मैं अर्चना. संकल्पना डॉक्टर सुचित्रा मेहता. लेखक शांतनु दास. दिग्दर्शक सतीश खेकाळे. नेपथ्य स्वप्नील बोहाटे. संगीत नियोजन अभय पांडे. प्रकाश योजना किशोर बत्तासे. रंगभूषा नकुल श्रीवास. वेशभूषा वैजयंती दीक्षित, सीमा धबडगाव, सुधीर धबडगाव आणि निलिमा दीक्षित. रंगमंच सहाय्य मनोहर दीक्षित, विनय लोहित, श्री बाळबुधे, समीर हरामे, अमन रामटेके, दीपेश मांगरे आणि श्रीयुत इंदुरकर. विशेष सहाय्य संदीप बारसकर, शेखर देशपांडे. पात्र परिचय. आई रेणुका इंदुरकर. बाबा आणि डॉक्टरच्या भूमिकेत राजेश दीक्षित. अर्चना अर्चना साठे दास. अपर्णा मीमांसा जोशी. अमित राघव उपारकर. नवीन विनय मोडक. अनिलजी अनिल इंदाणे. शांतनु शांतनु दास. जयंत जयंत गुळकरी आणि अंजली अर्चना मराठी. कॅन्सर अवेअरनेस अँड रिहॅबिलिटेशन फाउंडेशन नागपूर आणि इनर व्हील क्लब ऑफ नागपूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने सहर्ष सादर करीत आहोत एक हिंदी दीर्घांक मैं अर्चना. मैं अर्चना.
क्या है आज पेपर में? वैसे आजकल खास तो कुछ रहता नहीं है, वही घिसी पिटी खबरें, कुछ दम नहीं रहा अभी पेपर में। अजी सुनते हो? ये क्या सुबह सुबह पेपर लेके बैठ गए? अरे बच्चों के स्कूल का टाइम हो रहा है, आप मुझे सब्जी साफ करके दो, तब तक मैं रोटी बना लेती। 8 बज गए हैं। हाँ लाओ जल्दी लाओ। जल्दी करो। अरे मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, चिंता मत करो। लो बाबा, मैं आपकी मदद करती हूँ। अरे बेटा तू रहने दे, तू अपनी पढ़ाई कर। नहीं तो तेरी आई गुस्सा करेगी मुझ पर। मेरी पढ़ाई हो गई है बाबा। बहुत अच्छे। बाबा, हाँ बोलो। कल बुधवार था ना? हाँ तो? बिना का गीत मारा सुना क्या आपने? अरे नहीं ना बेटा, समय नहीं मिला। पहले पायदान पे कौन सा गाना था मालूम है? बताओ तो। मैं 16 बरस की, तू 17 बरस का। ये तो धन्य हो तुम दोनों बाप बेटी की। क्या ज्ञान दे रहे हो बेटी को। और क्या रे, तू भी क्या गाना लेकर बैठी है? पढ़ाई खत्म पहले। हाँ 10वीं का साल है, 80% से ज्यादा ही मार्क मिलने चाहिए, मैं बता देती हूँ। समझी? फिर गाते रहना जिंदगी भर गाना। अरे हाँ हाँ माँ, मेरी पढ़ाई हो गई है, तुम उसकी बिल्कुल चिंता मत करना। अरे तुम कितना डांटती हो बेचारी को। कितना सुंदर गाती है हमारी अर्चू, वो भी ताल सुर में। पता है पिछले साल उसे स्कूल से गाने के लिए अवार्ड मिला था, और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है। तुम भी ना बेकार उसके पीछे पड़े रहती हो। हाँ हाँ हाँ, मुझे मालूम है कि अर्चना बहुत होशियार है, पर बोलना पड़ता है। 10वीं का साल है, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, और आप तो कुछ बोलते ही नहीं, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है। वैसे भी हमारे तीनों बच्चे, अर्चना, अपर्णा और अमित, तीनों ही मेरे जिगर के टुकड़े हैं। वो तो और है। तीनों भी बहुत होशियार है, मालूम है मुझे। भाई, हाँ देखना, इस साल मैं बहुत अच्छे मार्क्स लाऊंगी। देखा? चलो, मैं अमित अपर्णा को खाना खिला देती हूँ। हाँ और मैं स्कूल के लिए तैयार हो जाती हूँ। हाँ बिल्कुल। और उनको भी तैयार करना है ना, मैं आती हूँ। अरे संध्या, हाँ बोलो। इस साल पता है हमारे अर्जुन ने 10वीं में 84% मार्क लाए हैं, और जैसा तुम चाहती थी ना, उसे साइंस में एडमिशन भी मिल गया है। अब तो तुम्हारी अभिलाषा पूरी हुई ना? हाँ हाँ हाँ, अरे हमारी बेटी कितनी होशियार है, ये क्या मुझे मालूम नहीं क्या? और मुझे उस वक्त गर्व भी है उसका। हाँ। लेकिन क्या करूं, मैं माँ हूँ उसकी। घर का सब काम करती है और बाद में पढ़ाई करती है, इसलिए मुझे ध्यान देना पड़ता है कि पढ़ाई की वजह से, इन सब कामों की वजह से उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। वो तो है। समझे आप? बिल्कुल, बहुत सही कहा है। गई कहाँ अर्चना अभी? अरे वो देखो, अर्चना आ गई। अरे आ गया बेटा। क्या हुआ तुम्हारे ट्यूशन क्लास का? एडमिशन तो मिल गई ना? हाँ बाबा, एडमिशन तो मिल गई है, लेकिन रात के 8:30 की बैच है, पर मैं मैनेज कर लूंगी बाबा। देखो अर्चना, तुम्हें स्कूल से क्लास से लेने के लिए मैं आऊंगा, तुम्हें साइकिल से लेने के लिए। अब तो तुम चिंता ही मत करो। अरे नहीं नहीं बाबा, मैं कर लूंगी ना मैनेज, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मुझे आपकी चिंता समझ में आती है बाबा।
लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ ना, अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, है ना आई? हाँ हाँ जी, सुनते हो? पता है, अपनी पता है। बेटी बड़ी हो गई है। हमारी गुड़िया रानी अब सयानी हो गई है। फिर भी बाप का दिल तू नहीं समझ पाएगी बेटा। अब 12वीं हुई कि तू ग्रेजुएट हो जाएगी, फिर तेरी शादी हो जाएगी। परसों रेडियो पर मैं वो गाना सुन रहा था। कौन सा बाबा? अरे हाँ, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी। मेरी आंखों के सामने तेरा ही चेहरा आ गया था। ऐसे ही किसी दिन इस बाप को तू छोड़ के चले जाएगी। बेटा, तेरा ये बाप ना गरीब है ने। तूने किसी अमीर बाप के घर ही जन्म लेना चाहिए था। फिर भी तू हमेशा सुखी रहना, सदा खुश रहना बेटा। इस बाप की तेरे लिए तहे दिल से यही दुआ है मेरी। बैठो। अरे बाबा, अब क्यों ऐसा बोलते हो? हम अमीर नहीं है तो क्या हुआ, हम गरीब भी नहीं है। हमारे आपस का प्यार ही हमारी दौलत है बाबा। मुझे तुम जैसे आई बाबा मिले हो, ऐसे कितनों को मिलता है भला। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। मुझे तुम दोनों भगवान जैसे लगते हैं बाबा। हाँ? अब आप कभी भी अपने आप को किसी से भी कम नहीं समझना। हाँ बेटा। खैर वो जाने दो, आप चाय पियोगी बाबा? अरे नेकी और पूछ जरूर पीऊंगा। मैं अब भी लाती। हाँ हाँ। आई, मैं चाय बना के लाती, तुम्हारे लिए भी लाती, तुम भी बैठो। अजय क्या हुआ? अजय क्या हुआ आपको? संध्या, अरे अजय क्या हुआ? संध्या दर्द हो रहा है। संध्या, अर्जुन देख जरा तेरे बाबा को क्या हुआ है? बाबा समझ में नहीं अर्जुन आई। बाबा, बाबा क्या हुआ? अजय क्या हुआ? क्या? अजय, अपर्णा, बाबा, बाबा, अपर्णा, चाय पी। तू भी पी। और तुम दोनों ऐसे उदास क्यों बैठे हो? ताई, हमारे बाबा कैसे हमें छोड़कर चले गए ताई। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है ताई। ताई, अब हम बाबा को कभी नहीं देख सकेंगे ना? नहीं अमित, हमारे बाबा भगवान के पास गए हैं। वो अब कभी भी वापस नहीं आएंगे और हमें ये सत्य स्वीकारना पड़ेगा। कम से कम आई के लिए तो ये सत्य स्वीकारना ही पड़ेगा। अगर हम ही ऐसे रोते रहेंगे, हम ही ऐसे उदास बैठे रहेंगे, तो आई कहाँ जाएगी? उसे कौन संभालेगा? और अगर आई की तबीयत खराब हो गई तो क्या हम लोगों को अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो अब हमें समझदार होना है, आई को परेशान नहीं करना है।
और किसी भी बात के लिए जिद नहीं करनी है, समझे? हाँ ताई। दो मुझे दो। अपर्णा, अमित, तुम जाओ, आई को बाहर लेके आओ, मैं उनके लिए चाय लाती हूँ। चलो। अपर्णा, अरे आई को ला रही ना? हाँ ताई। बैठो आई। आई, चाय पियो, तुम्हें अच्छा लगेगा आई। अरे ये क्या आई? तुमने फिर से रोना शुरू कर दिया आई। तुम ऐसे रोते रहोगी तो तुम कमजोर हो जाओगी, फिर हमें कौन देखेगा? आई, अब तुम ही हमारी आई और तुम ही हमारे बाबा हो। देखो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, हम है ना तुम्हारे साथ। अर्चू, अर्चू, तेरे बाबा मेरे लिए एक बहुत बड़ा सहारा थे। मेरे संसार के रथ का तो एक चक्का ही निकल गया। मैं कैसे जीऊंगी उनके बगैर? भगवान भी कितने निष्ठुर है ना। एक बार भी ये नहीं सोचा कि तेरे बाबा को ले जाते वक्त ये बच्चों का क्या होगा? ये बच्चे कैसे रहेंगे बिना बाप के? मैं कैसे संभालूंगी तुम तीनों को? आई शांत हो जाओ, आई शांत हो जाओ। मैंने कहा ना, सब ठीक हो जाएगा, हम सब है ना तुम्हारे साथ। हम सब मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे आई। अभी क्या रास्ता निकालेंगे हम अर्चू? मुझे तो लग रहा है कि अब मुझे ही लोगों के घर जाकर खाना बनाने का काम करना पड़ेगा, तभी हमारे खर्चे पूरे होंगे। बस मुझे ये एक ही मार्ग नजर आ रहा है, क्योंकि हमारा खाना पीना, तुम तीनों बच्चों की पढ़ाई, कैसे हो गए ये सब खर्चे? हे भगवान, तूने हमें किस संकट में डाल दिया? आई, आई, मैं कैसे संभालूंगी ये बच्चों को? आई, हम सब है ना, हम सब मिलकर कुछ ना कुछ कर लेंगे। हाँ, मैं भी अब बड़ा हो गया हूँ, मैं भी काम कर सकता हूँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। आई, देखो, भगवान पे भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देंगे, वो हमारी जरूर मदद करेंगे। आई, मुझे क्या लगता है कि तुम्हारे घर के बाहर जाने के बजाय हम घर में ही टिफिन सर्विस शुरू करें तो हमारे घर में लोग भी आ सकते हैं खाना खाने के लिए। आई, हम टिफिन सर्विस शुरू करेंगे। आई, हाँ, और अमित अपर्णा है ना? हाँ, हमारे मदद के लिए। हाँ, हम भी मेस के काम में आप दोनों की मदद कर देंगे। हाँ, पढ़ाई के साथ साथ हम मेस के काम में भी मदद करेंगे। अरे नहीं नहीं, तुम दोनों बहुत छोटे हो अभी, और अर्चना तू अब बड़ी हो गई है। अरे मेस में तरह तरह के लोग आएंगे, कुछ उल्टा सीधा हो गया तो लोग मुझे ही दोष देंगे। हाय, ऐसा कुछ नहीं होगा, और हमारी परिस्थिति को देखते हुए मेस शुरू करना ही अच्छा विकल्प लगता है मुझे। आई,
हम मैच शुरू करेंगे बस। ठीक है बेटा, अब तू कहती है तो हम मैच शुरू करेंगे। वैसे भी तू मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा ही है। अब मुझे सिर्फ तेरा ही सहारा है। भाई देखना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब तुम अपने तबीयत की ध्यान रखो, है ना? और आई, अब हमको रोना नहीं है, हमको परिस्थिति से लड़ना है। और हम तीनों के लिए तुम्हें हिम्मत रखनी पड़ेगी, हम तीनों का साथ देना पड़ेगा आई, है ना आई? हाँ ठीक है मेरी अच्छी आई। आ रहा हूँ ताई। जल्दी आ बाहर। हाँ ताई। अमित, ये थैली और ये चिट्ठी। हाँ ताई। मुझे ये सामान अभी चाहिए। ठीक है ताई। अभी लोग आएंगे खाना हाँ। खाने के लिए। जल्दी जा और जल्दी वापस आ। ठीक है ताई, अभी लाकर देता हूँ। अरे पैसे तो लेकर जा। ताई पैसे हैं मेरे पास। हाँ जल्दी आना। हाँ ताई। हाँ। अर्जू। हाँ बोलो आई। अर्चना बैठ। बोलो ना। तू न ये मेस की वजह से अपने पढ़ाई का नुकसान मत कर बेटा। मैं जब से मैच शुरू हुई है मैं देख रही हूँ तू सदा काम काम और काम में लगी रहती है। तेरा खुद की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। वैसे अर्जुन 2 साल हो गए नहीं मैच शुरू हुए, कैसे 2 साल निकल गए पता भी नहीं लगा। लेकिन अच्छा हुआ हमने मैच शुरू की, हमारी आर्थिक स्थिति बदल गई, थोड़े बहुत हमारे पैसे भी बचने लगे। अच्छा हुआ बेटा तूने उस टाइम मैच का आइडिया दिया, नहीं तो पता नहीं हमारा क्या होता था। मेरी होशियार बेटी है रे तू। लेकिन फिर भी अर्जुन तू अपनी तरफ ध्यान देती जा बेटा। हाँ आई, तुम्हारा साथ और बाबा का आशीर्वाद से ही हम इतना बड़ा काम कर सक रहे हैं। आई, तुमको कितनी शारीरिक और मानसिक तकलीफें हुई, पर तुमने हम तीनों को कभी भी किसी भी बात के लिए ना नहीं बोला। अब मेरा ग्रेजुएशन हो जाएगा, फिर मैं कोई नौकरी ढूंढ लूंगी। अरे हाँ आई, 3-4 दिन हो गए वो मिस्टर केमकर नहीं आए। क्या उन्होंने कुछ बताया था क्या आई? उन्होंने कुछ बताया नहीं था। और तुझे क्या करना है ना, वो आए और नहीं आए तो देख उन्होंने मैच छोड़ दी होंगी। वैसे भी अर्जू हमको लोगों की कमी नहीं है, समझी? तू भी नहीं। तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, इन फिजूल बातों में बिल्कुल ध्यान मत दे। हाँ। नमस्कार मौसी। सॉरी, मुझे ऑफिस के काम से अचानक टूर पर जाना पड़ा, इसलिए बता नहीं पाया। ठीक है, कोई बात नहीं। आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। जी बैठिए ना। कहाँ गए थे इतने दिन? मुझे लगा आपने हमारी मेशी छोड़ दी, अब हम कभी नहीं मिल सकेंगे। अरे कहा ना, बाहर गया था। सच कहूं, वहां मुझे आपके हाथ के खाने की बहुत याद आ रही थी। सिर्फ खाने की? खाने की भी और खाना बनाने वाले की भी। कुछ भी। और सुनो ना, आप मुझे आप करके मत बुलाइए। क्यों? मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं आपसे छोटी हूँ ना, मुझे आप सिर्फ अर्जू कह के बुलाइए ना। अर्जू? वाह, कितना प्यारा नाम है।
अर्चना, 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 आई लव यू। डू यू? जो उनको बोल खाना लग गया है। हाय, देखो खाना लग गया है, ठंडा हो जाएगा। हाँ। ठीक है बेटा। हाँ हाँ ठीक है। अरे अमित, तू कहाँ गया था? आइए, ताई ने खुद सामान लाने के लिए बोला था मेस का, वो मैं ले आया हूँ। अच्छा, तू एक काम कर, किचन में जाके ताई को दे दे। ठीक है। हाँ। मैं सहेली के यहाँ जाकर आती हूँ, कुछ लाना है क्या? अरे हाँ अपू, 1 किलो मूंग दाल और 1 हिंग की डब्बी ले आना। अंदर से पैसे ले ले कपाट से। पैसे है मेरे पास, मैं लेकर आती हूँ। अच्छा ठीक है। मैं भी जा रहा हूँ खेलने। अरे क्या तू दिन भर खेलते रहता है? होमवर्क वगैरह नहीं है क्या? आई, आज ज्यादा होमवर्क नहीं मिला है, मैं आकर कर लूंगा। आई अरे भगवान, ये क्या करूँ मैं? ये लड़के का दिन भर सिर्फ खेलना खेलना खेलना। हे भगवान। आज तो बहुत बढ़िया खाना हुआ। बहुत दिनों बाद ऐसा खाना हुआ है। अच्छा जी। लेकिन मेरे सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला अर्चना। सवाल? कौन सा सवाल? वही, डू यू? मुझे नहीं मालूम। और सब बातें बतानी पड़ती क्या? भावनाओं को शब्दों की जरूरत नहीं होती नवीन जी। लेकिन अर्चना, आज मैं तुम्हारे मुंह से सुने बगैर यहाँ से जाऊंगा नहीं। अरे अरे, आप ऐसा मत बोलो। आई अंदर है, उसने सुन लिया तो बहुत गुस्सा करेगी। और वैसे भी ये रिश्ता आई को बिल्कुल मंजूर नहीं होगा। मैं तो एकदम मुश्किल में पड़ गई हूँ। ना आई को छोड़ सकती हूँ, ना आपको। अर्चना, तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? देखो अर्चना, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं सारी जिंदगी तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए तैयार हूं। तुम जैसा कहोगी वैसे ही होगा। मगर मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अरे, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था, क्योंकि मेरे सामने बहुत सी समस्याएं हैं नवीन जी। और ऐसे में मैं इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकती। पूरे घर की जिम्मेदारियां हैं मुझ पर। अमित अपर्णा की पढ़ाई, हमारे पूरे घर का खर्च मुझे ही संभालना पड़ता है। बाबा जाने के बाद आई एकदम अकेली हो गई है। और आपको तो मालूम है ना कि शादी में आजकल कितना खर्चा आता है। बस इतनी सी बात। अच्छा, ये तुम्हारी सारी समस्या मैं तो यूं चुटकी में सुलझा दूंगा। फिर तो तुम शादी के लिए हाँ कह दोगी ना? मतलब मैं समझी नहीं। पहली बात, हम शादी कोर्ट मैरिज करेंगे, यानी खर्चे का कोई सवाल ही नहीं होगा। और रही दूसरी बात, तो शादी के बाद हम यहीं कहीं आसपास घर ले लेंगे, ताकि तुम भी मेज के काम में हाथ बटा सकती हो। और अर्चना, मैं भी मेरे तरफ से जितना हो सकेगा आर्थिक मदद तो करूंगा ही ना। देखो अर्चना, तुम मेरी इन सारी बातों पर विचार अवश्य करना। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। आता हूं मैं। सुनो नवीन,
तुमने तो मेरे दिल का सारा बोझ ही हल्का कर दिया। नवीन, नवीन, आई लव यू टू। मैं आता हूँ, मिलता हूँ बाद में। अर्जू, हाँ वो केनकर गए क्या? हाँ, ये अभी गए। एक बात बोलनी थी तुझसे। बोलो ना। कुछ दिनों से देख रही हूँ वो केनकर के साथ कुछ ज्यादा ही बातें करने लगी है तू। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं बता देती हूँ। देख, अपने आप को संभाल, वैसे भी अपने ऊपर और बहुत सी जिम्मेदारियां है। आई, तुमको मैं अभी बोलने ही वाली थी कि वो केनकर मुझसे बहुत प्यार करते हैं। क्या? और हम शादी करना चाहते हैं। हे भगवान! अरे, जिसका डर था वो ही हो गया। इसीलिए मैं वो मेस के लिए राजी नहीं थी। अब लोग मुझे ही दोष देंगे। ये रिश्ता मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अर्चना, तूने क्या देखा वो केनकर में? अरे, तू इतनी होशियार है, सुंदर है, तेरे को अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे बेटा। और वैसे भी तेरे को शादी की इतनी जल्दी क्या है? आई, क्या कमी है उनमें? वो स्मार्ट है, इंजीनियर है, अच्छा कमाते हैं और अपने जाति के भी हैं। और क्या चाहिए आइए तुमको? और मैं शादी करके कौन से दूर जाने वाली हूँ? यही तो रहूंगी तुम लोगों के पास। तुमको जब जरूरत हो तो मुझे बुला लेना है। आई, तुम समझने की कोशिश करो। ये शादी हम सबकी भलाई के लिए ही कर रही हूँ। आई, तुमने अगर दूसरा कोई लड़का ढूंढ लिया और उसने अरेंज मैरिज करने को बोला तो हम कहां से लाएंगे इतने पैसे? आई, केनकर को हमसे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। हम रजिस्टर मैरिज करने वाले हैं। आई, और शादी करके मैं कुछ नौकरी भी कर लूंगी, फिर हम सब मिलके अच्छे से रहेंगे। आई, अभी अपर्णा की तो मैं शादी होनी है ना, उसके शादी में भी पैसे लगेंगे। आई, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। आई, तुम सिर्फ ये शादी के लिए हाँ कर दो ना। आई, आई प्लीज, आई हाँ कर दो ना। आई, ठीक है बेटा, अब तूने फैसला ले ही लिया है तो मैं उसमें बाधा नहीं डालूंगी। लेकिन देख, शादी पूरे जिंदगी का सवाल है, सोच समझ के होना चाहिए। मेरी सिर्फ इतनी ही इच्छा है अर्जू, बैठ इधर। मेरी सिर्फ इतनी ही इच्छा है कि तू जिंदगी में हमेशा खुश रहनी चाहिए। कोई गम, कोई दुख तेरी जिंदगी में नहीं आनी चाहिए। बस मेरी यही इच्छा है और यही दुआ है। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। अब तूने सोच लिया है तो जैसा तू ठीक समझती वैसा कर। आई, बस मुझे यही चाहिए था। नवीन जीजा जी और ताई की शादी हो गई। दोनों ही अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। फिर कुछ समय बाद मेरी भी शादी हो गई और मैं साल भर बाद एक सुंदर सी बेटी की माँ बन गई। अरे आई तो पहली बार नानी बनकर बहुत खुश हुई थी। फिर अमित की भी शादी हो गई। ऐसे ही अनेक वर्ष गुजर गए। आई भी आदिवासी बच्चों के आश्रम में उन बच्चों के कल्याण का कार्य करने लगी। सब अच्छा चल रहा था, लेकिन शादी के 7-8 वर्षों के बाद भी ताई की गोद सूनी ही रह गई। इस वजह से आई भी बहुत चिंता में रहती थी। तभी लगभग 10 साल बाद मानो जैसे जीजा जी के और ताई के जीवन में नई खुशियों की आहट सुनाई देने लगी। ताई प्रेग्नेंट हुई, लेकिन भगवान को शायद उनकी एक खुशी मंजूर ही नहीं थी। ताई के एक के बाद एक 3 अबॉर्शंस हुए और डॉक्टर्स ने उनसे स्पष्ट कह दिया कि अगर उन्होंने फिर से ऐसी कोई कोशिश की
तो ताई की जान को खतरा हो सकता है। ताई के लिए ये बहुत दुखद था, लेकिन फिर भी जीजा जी ने और ताई ने ये सत्य स्वीकार कर लिया कि उनके जीवन में संतान सुख का। ऐसे में एक दिन आई ताई को मिलने आती है। अचानक कैसे आना हुआ आई? अरे अचानक नहीं बेटा, तेरी याद आई इसलिए आई मैं मिलने। अच्छा बैठो ना। बैठ। कैसी है तू अर्चू? तबीयत कैसी? ठीक हूँ ठीक। अर्चू तू कितना सहन कर लेती है रे, और तेरे चेहरे पे उदासी बिल्कुल भी नजर नहीं आती। इतनी शांत और प्रसन्न कैसे रह लेती है तू? लेकिन तू अपना ख्याल रख बेटा, मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ। अरे क्या हुआ जो तू माँ नहीं बन सकी? तो दुनिया में ऐसी कितनी औरतें हैं जो माँ नहीं बन सकती। तुझे समाज के भले के लिए ही काम करना है। मैं क्या बोलती अर्चू, वो अनिल जी है ना अपने, उनको ब्लड बैंक में तू कुछ योगदान दे सकती है क्या? इसके बारे में पूछ, तेरा अच्छा समझ जाएगा। हमने लोगों का भला करना बहुत अच्छी बात होती है, हमें उसमें बहुत खुशी मिलती है। और लोगों का भला हमने यदि किया ना तो हमारा भी भला ही होता है। भगवान हमेशा अच्छे लोगों के साथ होता है, हमें सिर्फ धीरज रखना चाहिए बस। हाँ तो मैं एकदम ठीक कह रही हूँ। आई मैंने ब्लड बैंक ज्वाइन किया। नवीन ने अनिल जी से बात की थी तो उन्होंने मुझे बुला लिया वहाँ। अरे वाह। आई ब्लड बैंक में जाके मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहाँ मैं ब्लड डोनेशन कैंप्स अरेंज करती हूँ, सिकल सेल थैलेसेमिया पेशेंट्स की मदद करती हूँ। ऐसे बहुत से काम मैं करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों के लिए काम करना। उनकी खुशी में मैं अपना दर्द भूल जाती हूँ। और आई मैंने अब विकलांग लोगों के लिए भी काम करना शुरू कर दिया है। अरे वाह। उनके समस्याओं पर मैंने एक किताब भी लिखी है, उसका नाम है सलाम। और तुम्हें पता है आई, विकलांग और दृष्टिहीन लोगों को लेके मैंने एक म्यूजिकल ग्रुप भी बनाया है, उसका नाम है स्वर दृष्टि। आई गाने की कला का मैं ऐसा उपयोग कर रही हूँ, इसमें अनिल जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ना आई। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही कह रही है अर्चू। अनिल जी जैसी व्यक्ति हमें मिलना ये बहुत बड़े भाग्य की बात होती है। तू इसमें से बाहर निकल रही है, तू नॉर्मल हो रही है, इससे मुझे बहुत खुशी मिल रही है। तू ऐसी हमेशा प्रसन्न और खुश रहे बेटा, बस यही मेरी दुआ है।
बाकी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, परिस्थिति हमको सब सिखाती है और मैंने भी यही सीखा है कि किसी भी संकट में विचलित ना होके हमें अपना जीवन हंसते हंसते जीना है ना आई? हाँ, बिल्कुल सही कह रही है। पर अर्चू, तूने इतनी समझदारी कहाँ से सीखी बेटा? आई, तुमसे ही तो सीखी हूँ। तुम ही मेरी प्रेरणा स्रोत हो आई। ताई ब्लड बैंक और विकलांग लोगों की संस्था में पूरे मनोयोग से कार्य कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान नवीन जीजा जी को हार्ट अटैक आया और उनकी एंजियोप्लास्टी करनी पड़ी। ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन उसमें बहुत पैसे खर्च हुए। लेकिन हाँ, अनिल जी ने बहुत मदद की। लेकिन ऑपरेशन हुए 3 ही महीने हुए थे कि जीजा जी और ताई के सामने एक नया संकट आ गया। दवाइयों के साइड इफेक्ट्स की वजह से जीजा जी को एवीएन अर्थात अवेस्क्युलर नेक्रोसिस ऑफ हिप जॉइंट, इसकी तकलीफ शुरू हो गई और तकलीफ इतनी बढ़ गई कि उनका चलना फिरना भी बंद हो गया। इस वजह से घर की आमदनी भी कम हो गई और एवीएन के इलाज में पैसे भी खर्च होने लगे। लेकिन हाँ, अनिल जी बीच बीच में जरूर आते थे हालचाल पूछने। ऐसे में एक दिन अनिल जी ताई और जीजा जी को मिलने आते हैं। अरे इधर से ऐसे में गुजर रहा था, सोचा तुमको मिल चलूं। और परसों आपने बताया ना कि नवीन की तकलीफ जरा बड़ी है, तो मतलब उसको भी मिल लो। कैसे क्या है हमारे जवाई राजा? ठीक ही है, बुलाती हूँ। हाँ, सुनो, अनिल जी आए। हाँ हाँ हाँ, आ रहा हूँ। मैंने सुनी उनकी बात है। अरे नमस्कार अनिल जी। नमस्ते नमस्ते। हाँ, जी में जरा ज्यादा तकलीफ हो रही है। हाँ दिख रहा है। आराम से आराम से। आराम से। कैसे हो जमाई राजा? कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं, दर्द बढ़ते ही जा रहा है। अनिल जी, मैं तो पूरी तरह से असमर्थ हो गया हूं। अब सब कुछ अर्चना को ही देखना पड़ता है, घर का भी और बाहर का भी। पैसों की किल्लत तो आप जानते ही हैं। मेरा नसीब अच्छा है कि अब तक मैंने नौकरी नहीं ली, पर कंपनी भी कब तक सपोर्ट करेगी न जाने आगे और क्या होगा। अरे ऐसा सोचने से क्या होगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ, जरा अर्चना की तरफ देखो, वो सब काम कितने धैर्य से कर लेती है, किसी भी बात की शिकायत तक नहीं करती। हाँ हाँ, एकदम सही कहा अनिल जी आपने। मेरा नसीब सही में बहुत अच्छा है जो मुझे अर्चना जैसी जीवन साथी मिली। वो तो है बेटा। चलो मैं चलता हूँ। तू अपना ख्याल रखना अर्चना, और कुछ भी
चिंता की बात रही तो मुझे जरूर बताना। हाँ, जरूर बताऊंगी अनिल जी। वैसे भी आप हमारे लिए कितना करते हो, आजकल कौन इतना किसके लिए करता है। अनिल जी, आपका हमें बहुत बड़ा आधार है। अनिल जी, नवीन की तबीयत ठीक हो जाए, बस यही चाहती हूँ। इन्हीं की चिंता लगी रहती है अनिल जी। अरे चिंता मत कर बेटी, चिंता करने से कुछ होता है क्या? उल्टी अपनी ही तबीयत खराब होती है। तू बिल्कुल चिंता मत कर, अपनी तबीयत की तरफ ख्याल रख। हाँ अनिल जी, मुझे तो ख्याल रखना ही पड़ेगा। अगर मैं बीमार पड़ गई तो देखने वाला कौन है? ये तो बात है बेटा, तू अपना ख्याल रखो, इनका भी ख्याल रखो। हाँ। दोनों एक में एक का ख्याल रखो। मैं आता हूँ और कुछ भी बात की जरूरत पड़ी तो मुझे फोन जरूर करना। हाँ। ठीक है, आता हूँ। हाँ। मैं आती हूँ। अर्चना, तुम्हें मेरी मालूम वजह से बहुत तकलीफ हो रही है ना? तुम्हें मालूम है, आज मैंने तुम्हारी पसंद की कुरकुरी भिंडी और मसाले दाल बनाई हूँ। तुमको अच्छी लगती ना? हाँ हाँ, पर देखो ना अर्चना, मैं लाती ना, मैं अभी लाती हूँ। आपको खाना खाना है ना? मैं अभी लाती हूँ। कुछ बोल रहे थे आप? आई लव यू अर्चना। ये क्या? बोलो अर्चना, क्या बात है? सुनो, तुम पहले एक किताब बाजे रखो। अरे, और मैं जो बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनो। ये क्या बात है अर्चना? और अर्चना, तुम ऐसे घबराई से क्यों लग रही हो? देखो देखो, मेरे लेफ्ट ब्रेस्ट में मुझे गांठ महसूस हो रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। किस चीज की होगी ये गांठ? हे भगवान, मेरी शंका गलत हो जाए भगवान। अरे अरे, ये सिर्फ तुम तिल का ताड़ क्यों बना रही हो? पहले ये जान तो लो, ये गांठ किस चीज की है। देखो अर्चना, तुम आज तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करो और अपना चेकअप करवा लो। चलो, तुम तैयार हो जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। अरे पहले अपने चिंता करना। ठीक हो ना? देखो, मैं अकेले ही चली जाती हूँ डॉक्टर के पास और वहां जाके तुमको फोन करती हूँ। तुम मेरे साथ नहीं हो ना, तो भी मुझे लगता है तुम मेरे ही साथ हो। मैं जाके आती हूँ। अर्चना देखो, तुम्हारे इस समय भी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रहा। आई एम सॉरी अर्चना। मैं अनिल जी को फोन करता हूँ। अरे नहीं, मैं पहले डॉक्टर के पास जाके आती हूँ, फिर वो क्या कहते देखते हैं ना। हाँ, फिर करेंगे फोन उनको। ठीक है, मैं जाके आती हूँ। हाँ। तुम अपना ध्यान रखना प्लीज। मैं आती हूँ।
मे आई कम इन डॉक्टर? यस, कम इन। हेलो डॉक्टर। और अर्चना, बैठो। कैसी हो? ठीक हो डॉक्टर। अच्छा, देखो कल हमने जो तुम्हारे सारे टेस्ट किए थे ना, उसके अभी रिपोर्ट्स आ गए हैं। आ गए? हाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे साथ कोई आया है क्या? यदि आए हो तो उन्हें बुला लो, मुझे उनसे रिपोर्ट के बारे में कुछ बात करनी है। नहीं डॉक्टर, मैं अकेले ही आई हूँ। क्या है ना, मेरे हस्बैंड को एवीएन का प्रॉब्लम है। ओह। वो चल नहीं सकते। लेकिन डॉक्टर, आप मुझे बताइए ना, क्या हुआ है मुझे? क्या आया है रिपोर्ट में? देखो अर्चना, मैं सबका सामना करने के लिए तैयार हूँ डॉक्टर। देखो अर्चना, घबराना नहीं। तुम एक हिम्मत वाली लड़की हो और मुझे विश्वास है कि तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। बेटा, तुम्हारा रिपोर्ट पॉजिटिव आया है, तुम्हें ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। क्या? कैंसर? रिलैक्स मेरी शंका सही निकली। रिलैक्स, ऐसे घबराओ मत। देखो, हिम्मत से काम लो। तुम्हारा कैंसर अभी फर्स्ट स्टेज में ही है और हम यदि तुरंत ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो वो जल्दी ठीक भी हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्ली डिटेक्शन की वजह से तुम्हारा पूरा ब्रेस्ट भी नहीं निकालना पड़ेगा। सिर्फ गांठ निकालने से ही तुम एकदम ठीक हो जाओगे। तुम्हारा कैंसर एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी घबराना छोड़ो, हिम्मत से काम। ठीक है डॉक्टर, मैं घर जाके इनसे बात करती हूँ। हाँ। और आपसे तुरंत मिलती हूँ। ठीक है। ओके डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। ओके, संभल के जाना। मैं हूँ अर्जुन। अरे, तुम आ गई? हाँ। क्या कहा डॉक्टर ने? बताती हूँ, 2 मिनट में आती हूँ। क्या कहा डॉक्टर ने? बताती हूँ, थोड़ा सांस तो लेने दो। देखो, तुम पहले रिलैक्स हो जाओ और जो मैं बोलती हूँ, जो मैं कहती हूँ, ध्यान से सुनो। अरे तुम ये बातों को ऐसी घुमाओ फिराओ मत, सीधे सीधे बताओ डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा मुझे कैंसर हुआ है, ब्रेस्ट कैंसर। क्या? लेकिन डॉक्टर ने यह भी कहा है कि तुम्हारा कैंसर फर्स्ट स्टेज में है, इसलिए पूरी तरह से ठीक हो सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ ऑपरेशन से गांठ निकालने की जरूरत है, पूरा ब्रेस्ट निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या अर्जुन? ऑपरेशन के लिए कुछ पैसे लगेंगे ना? कहाँ से लाएंगे हम पैसे? डॉक्टर ने तो कहा है तुम तुरंत एडमिट हो जाओ। अगर मैंने देरी की तो कैंसर बढ़ सकता है। कोई बात नहीं अर्चना, कोई बात नहीं। देखो, डॉक्टर जैसा कहते हैं हम वैसा ही करेंगे। तुम कल ही एडमिट हो जाना।
हमें उसमें जरा भी देरी नहीं करनी चाहिए। अरे पर तुमने ये सोचा है क्या कि वो पैसे कहाँ से लाएंगे? अरे तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हारी तबीयत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, समझी? मैं करता हूँ कुछ पैसों का इंतजाम। देखो अर्चना, तुम अभी आराम करो, तुम्हें कल एडमिट होना है ना। मैं जरा अनिल जी से बात करता हूँ। और हाँ, तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में किसी न किसी को तो रहना होगा ना। हाँ। मैं अपर्णा और अमित को भी इन्फॉर्म कर देता हूँ। ठीक है। देखो अर्चना, तुम जरा भी चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना। क्या हाल हमारे फाइटर बिटिया का? कैसी है अर्चना और नवीन? दोनों भी ठीक है। अच्छा। नवीन आराम कर रहे हैं। हाँ। मैं अर्चना को बुलाती। अर्चू, बेटी अर्चना, अनिल जी आए हैं मिलने। कैसे हो अनिल जी? ठीक हो? कैसे हो बेटी? और नवीन कैसा है? ठीक है अनिल जी, वो आराम कर रहे हैं। अभी केमो के बाद रेडिएशन की शुरुआत हुई अनिल जी। थोड़ा तकलीफ हो रही है, पर मैं सहन कर लूंगी। हाँ बेटा, मुझे मालूम है, और ये सब तुम्हें सहन करना ही पड़ेगा अच्छा होने के लिए। हाँ अनिल जी। अच्छा, मुझे बताओ कौन कौन आया था मिलने के लिए? रोज अरे कोई ना कोई आता मैं है। बताऊं क्या, मुझे तो इतने सारे फोन आए तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछने के लिए कि जिसकी कोई हद नहीं। रोज कोई ना कोई आते हैं मिलने मुझसे। और मुझे भी अच्छा लगता है लोगों से मिलना, लेकिन एक बात मुझे अच्छी नहीं लगती। ज्यादातर लोगों को मेरे तबीयत के बजाय मैं बिना बालों के कैसे दिखती हूँ, यही जानने में ज्यादा रुचि है अनिल जी। और ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। उनके हाव भाव से मुझे पता चलता है अनिल जी, बहुत दुख होता है। हाँ बेटी, जागरूकता का अभाव होने से ऐसा होता है। लोगों को कैंसर और केमोथेरेपी के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, इसलिए वो ऐसा बर्ताव करते हैं। इसमें उनकी गलती नहीं है, मगर कैंसर और कैंसर के बारे में उनके मन में जो दर्द है, मतलब जो डर है, उसके वजह से ऐसा होता है। तो उनको ये सब ठीक तरह से बताना ही पड़ेगा हमको। तू जल्दी जल्दी ठीक हो जा, फिर लोगों में कैंसर के बारे में जागरूकता लाने के लिए तुझे ये काम करना पड़ेगा। और मुझे विश्वास है कि तू ये काम जरूर कर पाएगी। मैं कैसे कर लूंगी पर अनिल जी? बेटा तो कैंसर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम अभी तक। देखो बेटा, तू अभी ठीक हो जा, फिर डॉक्टर से बात कर, उनसे जानकारी ले, समझ ले, फिर लोगों से जाके बात करना। और तेरा जो अनुभव है वो तो तू लोगों को बता सकती ही है ना। देखो बेटा, किसी भी बात के लिए इच्छा शक्ति होने की जरूरत है। अगर इच्छा शक्ति प्रबल है
तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। तुझे समाज के इन लोगों के लिए ये सब काम करना पड़ेगा। कैंसर के बारे में समाज में जागृति करना ही पड़ेगा। और मुझे विश्वास है कि ये काम तू अच्छी तरह से कर पाओगी बेटी। मेरा आशीर्वाद है तेरे पर। अरे अनिल जी, आपने हमारे अर्चू के लिए कितना किया है ना। मैं तो माँ होकर भी कुछ नहीं कर सकी। अनिल जी, आपके उपकार हम कभी नहीं, ये एहसान हम कभी नहीं भूल सकते। आप अर्चू के लिए बिल्कुल कृष्ण के जैसे बनकर आ गए। ऐसी कोई बात नहीं है। अर्चू के लिए जो कुछ भी मैंने किया वो सब समाज से लेके किया है। मतलब समाज ने हमको दिया, अब अर्चू को उसको समाज को लौटाना है। मैं अभी अर्चू को वही बता रहा था। देखो आपको देखकर कितनी खुश हो गई है। चलो मैं चलता हूँ बेटा। अभी किसी भी बात की आवश्यकता है तो मुझे फोन जरूर करना। टेक केयर। तबीयत का ख्याल रखना। अर्चू, बहुत दर्द हो रहा है क्या बेटा? तू इसमें से बाहर निकल जाएगी। थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा सब। आई, हाँ, मुझे बालों के बजाय मेरी तबीयत की ज्यादा चिंता है। बाल क्या कीबो के बाद फिर से आ जाएंगे। आई, हाँ, तुम और रुको ना मेरे साथ कुछ दिन। तुम भी कितनी कमजोर लग रहे हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना आई? हाँ, तबीयत तो ठीक है अर्चू। क्या हुआ? पर तुझसे एक बात बोलना है, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। अरे बोलो ना आई। अरे नहीं, तू पहले ही अपने ट्रीटमेंट की वजह से इतनी परेशान है। मैं अब तेरी परेशानी और नहीं बढ़ाना चाहती अर्चू। क्या हुआ है? अब तू बोलती है तो बताती हूँ। कुछ दिनों से ना मुझे यहाँ जबड़े के पास एक गांठ लग रही है और थोड़ा थोड़ा दर्द भी हो रहा था। लेकिन मेरे बहुत सारे कार्यक्रम थे तो मैं बाहर थी, इसलिए मैं डॉक्टर को नहीं दिखा सकी। लेकिन अभी वो दर्द भी बढ़ गया है और वो गांठ भी हाथ को लगने लगी है। मुझे थोड़ी चिंता हो रही है अर्चू, पता नहीं क्या होगा। आई, हमें तुरंत के तुरंत डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। आई, ऐसे में देरी करना ठीक नहीं है। हम आज ही डॉक्टर के पास जाते हैं। मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। तुम बिल्कुल घबराओ नहीं आई। ठीक है आई? ठीक है बेटा, ठीक है। May I come in, doctor? Yes, come in. आओ आई। आइए, बैठिए। बैठो डॉक्टर। हाँ अर्चना, हमने जो आई के टेस्ट किए थे उसके रिपोर्ट्स आए हैं। आई को मैंडिबल का कैंसर हुआ है। कैंसर? हाँ सर, ये आप क्या कह रहे हैं? अर्चू, आपने रिपोर्ट ठीक से पढ़ी है ना? कुछ गलती तो नहीं है सर इसमें? मुझे बहुत डर लग रहा है। अर्चू, तो बोलना कुछ। देखिए, आप शायद नहीं है। मैंने सब रिपोर्ट्स अच्छे से देखे हैं, इसमें कुछ भी गलती नहीं हुई है। अरे, आपकी बेटी इतनी हिम्मत वाली है और आप घबरा नहीं है। आप शांत रहिए। अर्चना, हमें आई का ऑपरेशन तुरंत करना पड़ेगा क्योंकि इनका कैंसर एडवांस स्टेज में है। नहीं, मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी। धीरज रखिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। आई, अर्चू, तू डॉक्टर को कुछ बोल। मैं ये ऑपरेशन सहन ही नहीं कर पाऊंगी। नहीं नहीं नहीं। आई, नहीं। आई तुम पहले शांत हो जाओ। आई,
फिर देखते हैं ना क्या करना है तुम्हें। शांत हो जाइए, शांत हो जाओ। शांत रहिए। अर्चना, तुम भाई को लेके जाओ और अपना डिसीजन जल्दी जल्दी लेके मुझे बताइए। हाँ डॉक्टर। ध्यान से जाइए। देखो आई, मैं जो कहती हूँ प्लीज सुनो। आई, कैंसर का ऑपरेशन अगर अपन ने तुरंत नहीं किया, कैंसर की ट्रीटमेंट अगर हमने तुरंत नहीं की, तो कैंसर पूरे शरीर में फैल सकता है। फिर डॉक्टर चाहकर भी हमारी मदद नहीं कर सकते। आई, तुम इतनी घबराती क्यों हो? तुम मेरे तरफ देखो, मुझे भी कैंसर हुआ था ना, मैं घबराई क्या? मैंने ट्रीटमेंट लिया और आज मैं ठीक हो रही हूँ। तुम मेरी बात मानो आई, हम डॉक्टर जैसा कहते हैं वैसा ही करेंगे। वो ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं ना, हम ऑपरेशन करेंगे आई। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ठीक है बेटा, तू कहती है तो कर लेंगे ऑपरेशन। तुम बिल्कुल फिक्र मत करना है। ठीक है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। हाँ हाँ ठीक है बेटा। आई का कैंसर एडवांस स्टेज में था, इसलिए ऑपरेशन के बाद भी उसे कोई फायदा ही नहीं हुआ। और एक दिन आई हम सबको छोड़कर चली गई। ये हमारे लिए बहुत बड़ा झटका था। और ताई को भी बहुत शौक लगा, क्योंकि आई ताई का बहुत बड़ा सहारा थी। ताई को इस बात का बहुत दुख था, क्योंकि उनकी कैंसर की ट्रीटमेंट शुरू थी, वो आई के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। लेकिन फिर भी ये सब सहन करते हुए ताई लगातार विकलांग लोगों की संस्था में काम कर रही थी। अर्जु, जो भी कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ। अरे अब हम आई को कभी नहीं देख सकेंगे। मुझे आज लग रहा है मैं एकदम अनाथ हो गई हूँ, एकदम अनाथ। I can understand your feelings, अर्चना। संभालो अपने आप को। मैं क्या कहता हूँ अर्चना, तुम कुछ दिन के लिए बाहर क्यों नहीं हो आती? तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं बाहर जाऊंगी तो तुम्हें कौन देखेगा? अरे मैं मेरा मैनेज कर लूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो।
और मौसी तो है ही ना घर पर। वो अनिल जी कुछ केरल के अभ्यास वर्ग के बारे में बोल रहे थे, तो वहां क्यों नहीं चली जाती? 3-4 दिन का ही तो सवाल है। हाँ, मैंने डॉक्टर से बात कर ली थी। हाँ। वो बोले तुम जा सकती हो, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। पर मुझे बताओ, मैं तुमको इस हालत में छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? अरे कहा ना, मेरी चिंता छोड़ दो तुम उस अभ्यास वर्ग में चली जाओ। पर अर्चना, वो तुम्हारी कीमो शुरू है, उसका कैसे? हाँ, कीमो के बाद 3-4 दिन रेस्ट करके मैं जा सकती हूँ। हाँ। लेकिन तुम मुझे वादा करो, तुम मुझे रोज फोन करोगे और अपनी तबीयत का ध्यान रखोगे। मैं मौसी को वैसे बता के जा रही हूँ। हाँ अपना ध्यान रखोगे ना? हाँ, तुम मेरी चिंता मत कर। अनिल जी, अरे आओ बेटी अर्चना, आपने अचानक मुझे बुला लिया? बैठो 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 पहले। क्या बात है अनिल जी? कोई खास बात नहीं बेटा। अर्चना, अनिल जी, एक बहुत बुरी खबर तुझे बताना है। क्या हुआ अनिल जी? बताइए ना। बेटा, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं क्या? बेटा नवीन। क्या हुआ नवीन को? क्या हुआ अनिल जी? बेटा नवीन अब हमारे बीच में नहीं रहा। क्या? भगवान, ये कैसे हो सकता है अनिल जी? भगवान मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं अनिल जी? संभालो अपने आप को बेटा। ये कठोर सत्य है, ये हमें सहन करना ही पड़ेगा, ये हमको स्वीकार करना ही पड़ेगा बेटा। अनिल जी, भगवान मेरे ही साथ ऐसा क्यों करते हैं? पहले मेरे पापा गए, फिर मेरी प्यारी आई गई, और अब जिसे मैं बेहद प्यार करती थी, वो मेरे मित्र, मेरे पति मुझे छोड़ के चले गए। अब मैं इस दुनिया में एकदम अकेली हूँ अनिल जी, एकदम अकेली। बेटा तू अकेले कहाँ है? हम सब तेरे साथ है ना। और तू जिन लोगों के लिए काम करती है वो भी तेरे परिवार का एक हिस्सा है ना। तू अकेलेपन का ख्याल मन से निकाल ले बेटा, खुद को संभाल। अनिल जी, आपको एक विनती है अनिल जी। हाँ बोलो। हम नवीन के नेत्र दान करेंगे अनिल जी। मुझे ऐसा लगता है वो शरीर रूप से ना सही, पर नेत्र रूप से इस दुनिया में है अनिल जी। बेटा अनिल जी, इसकी आप व्यवस्था कर दीजिए अनिल जी, प्लीज। बेटा मैं किस शब्दों में तेरी तारीफ करूं बेटा। मुझे तुझ पर गर्व है। ऐसे हालात में भी तू समाज के भले का सोचती है। धन्य है तू बेटा, धन्य है। मैं करता हूँ व्यवस्था नेत्रदान की, मैं करता हूँ।
किसके लिए जिए? और जिए भी तो कैसे? जीने के लिए पैसे कहां से आएंगे? ताई के सामने एक बड़ा सवाल था, क्योंकि उसकी कैंसर की ट्रीटमेंट शुरू थी, तो वो नौकरी भी कैसे करेगी? लेकिन ताई ने ये सत्य स्वीकार किया, हिम्मत जुटाई और मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन में कोर्स किया और उसके बाद शहर के एक अस्पताल में काउंसलर के पद पर कार्य करने लगी। उसी के साथ ताई कैंसर के जन जागृति का भी कार्य करने लगी। शहर में और आसपास के गांव में ताई अवेयरनेस कैंप कराने लगी। वो लोगों को अपना अनुभव बताने लगी और कैंसर के अर्ली डिटेक्शन के फायदे समझाने लगी। हजारों लोगों को इसका फायदा हुआ, विशेषकर महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर और गर्भाशय के कैंसर के लक्षण पहचानने में बहुत सहायता मिली। ताई की जिंदगी बदल गई थी, लेकिन अनिल जी फिर भी उनके साथ थे। उन्हें ताई के भविष्य की चिंता थी। तभी उन्हें जयंत जी की याद आई। जयंत जी ताई के बचपन के मित्र हैं। फिर एक दिन अनिल जी जयंत जी से मिलने आते हैं। नमस्कार अनिल जी। अरे कैसे याद किया? आओ आओ जयंता। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। एक जयंता, मुझे तुमसे एक महत्वपूर्ण बात करनी थी। कहिए ना। देखो जयंता, मैं अर्चना के पुनर्विवाह के बारे में सोच रहा हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल? क्या बात कर दी अनिल जी आपने। मैं आपसे कहने ही वाला था। मेरा एक बचपन का मित्र है शंतनु दास। अच्छा। छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। फिलहाल वो सर्विस के काम से नागपुर में ही रहता है। अच्छा। उसके पत्नी का 1 साल पहले ही देहांत हुआ। उनका एक 13 साल का बेटा भी है। अच्छा। परसों ही मैंने अर्चना के बारे में शंतनु से बात की। अच्छा। अर्चना की स्टोरी सुन के वो काफी प्रभावित हुए। अभी हम कुछ काम से साथ में ही निकले थे। शंतनु मेरे साथी है। अच्छा। अगर आप कहते हैं तो मैं उसको बुलाता हूँ। हाँ। देखो जय, तुम जो कुछ भी करोगे वो अर्चना के भले के लिए करोगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। अगर तुम्हें लगता है कि वो अर्चना के लिए सूटेबल है तो जरूर होगा। अब रही बात जाति की और बंगाली होने की, तो मैं अर्चना से बात कर लूंगा। वो मेरी बात नहीं टालेंगे, मुझे विश्वास है। शंतनु मेरे साथ आ गए हैं क्या? तो ऐसा करो, उनको बुला लो। ठीक है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। अरे शंतनु। हाँ। अनिल जी ने मिलना। अच्छा। अनिल जी, ये मेरा बचपन का दोस्त है शंतनु दास। और शंतनु, ये अनिल जी हमारे मार्गदर्शक। नमस्कार। नमस्कार। बात कर रहे हैं, अनिल जी ने आपको बुलाया है। अच्छा, ओके। हाँ अनिल जी, जयंत ने मुझे अर्चना जी के बारे में सब कुछ बताया। अच्छा। और उनके बारे में सब कुछ जानने के बाद मैं उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुआ हूँ अनिल जी। वाह। तो अगर आप दोनों को कोई आपत्ति ना हो तो मैं एक बार अर्चना जी को मिलना चाहूंगा। ठीक है। क्या आपत्ति हो सकती है? ऐसा करते हैं जी, कल हम इसी वक्त यहीं पर मिलते हैं। मैं अर्चना को लेके आऊंगा, आप दोनों बात कर लेना। जी बिल्कुल। ठीक है। तो कल मिलते हैं फिर। नमस्कार। नमस्कार। अरे आओ अर्चना, आओ। देखो जयंत अभी आता ही होगा,
अरे वो देखो आ गया जज, और साथ में वो शंतनु जी भी हैं। हाँ हाय नमस्कार। तो शंतनु जी, आप है अर्चना, और अर्चना ये है शंतनु दास। अभी ऐसा करो, आप आपस में चर्चा करो, हम दोनों रुकते हैं बाहर। चलो जयंता, अपन चलते हैं इधर। आप प्लीज बैठे। नहीं बैठिए आप प्लीज। मुझे जैन ने बताया आपके बारे में। हाँ, मुझे भी अनिल जी ने आपके बारे में बताया। अर्चना जी, जैन जैसा कह रहा था कि आप पुनर्विवाह के बारे में सोच रही हैं, तो एक्चुअली मैं भी इसी बारे में विचार कर रहा था। तो मैं चाहता था कि हम इस बारे में स्पष्ट रूप से बात कर ले, ताकि कोई शंका ना रहे। तो मैं चाहूंगा अर्चना जी कि पहले आप बताएं कि आप क्या सोचती हैं। मुझे एक बात बताइए शंतनु जी, कि आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं, जबकि मैं आपके जाति की नहीं हूँ। हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा खान पान सब अलग है, फिर भी। देखिए अर्चना जी, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं ये जाति पाति को बिल्कुल नहीं मानता। मेरे लिए सभी लोग इंसान हैं, और आप भी सबसे पहले मेरे लिए एक इंसान हैं। हाँ, हमारी जाति, भाषा, हमारा खान पान, संस्कार सब अलग हो सकते हैं, लेकिन अर्चना जी, अगर दो लोग एक होने का विचार करें ना, तो इतनी सारी विभिन्नताओं के बावजूद भी वो एक साथ अच्छे से रह सकते, ऐसा मैं सोचता हूं। जहां तक आपसे शादी की बात है, तो उसके लिए मैं इसलिए राजी हुआ क्योंकि मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना। आपने जिस तरह से अपने जीवन की कठिनाइयों से संघर्ष करते हुए आज अपने लिए एक अलग मुकाम हासिल किया है, और आज इस समाज के लिए जो कुछ आप कर रहे हैं अर्चना जी, उसके लिए मेरा आपको सलाम। आपको पता है, मैं भी लोगों के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन अफसोस मैं कभी कुछ नहीं कर सका। यह इच्छा वर्षों से मेरे दिल में दबी रह गई अर्चना जी। लेकिन अब आपसे मिलके ऐसा लगता है कि मैं भी लोगों के लिए, समाज के लिए कुछ कर पाऊंगा, और इस तरह से अपना जीवन सार्थक कर पाऊंगा अर्चना जी। तो अर्चना जी, अगर आपको मैं और मेरे विचार पसंद आए हो, तो मैं जीवन भर आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। वो सब ठीक है शंतनु जी, लेकिन क्या आपको मालूम है कि मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ, और अगर आप सहानुभूति की वजह से मुझसे शादी करना चाहते हैं, तो मैं ये शादी के लिए हरगिज राजी नहीं हूँ शंतनु जी, क्योंकि मैं किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहती। मैं अपने आप में पूरी तरह से सक्षम हूँ। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सक्षम है अर्चना जी। आपको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। देखिए अर्चना जी, मैं आपसे किसी सहानुभूति की वजह से शादी नहीं कर रहा। मैं तो आपके कार्यों में सहभागी होने के लिए आपसे विवाह करना चाहता हूं। अर्चना जी, मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि आप अपनी बीमारी किसी से छुपाती नहीं है। आप खुद होकर लोगों को बताती है कि आपको कैंसर हुआ था। आपको पता है कि लोग छुपाते हैं, वो अपनी बीमारी के बारे में किसी को बताते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर उन्होंने किसी को बताया तो लोग उनसे दूर चले जाएंगे, समाज में उनके प्रति अलग भावना आ जाएगी, यू नो। लेकिन आप ऐसी नहीं अर्चना जी। आपने खुद होकर लोगों को बताया कि आपको कैंसर है। ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, और आज आप समाज के लिए एक उदाहरण बन के आई है अर्चना जी। इसलिए अर्चना जी, आप जैसे व्यक्तित्व के साथ जुड़कर मैं भी अपने आप को धन्य समझूंगा। अर्चना जी, एक बार मेरे प्रस्ताव पर अवश्य विचार करें। शंतनु जी, क्या आपको मालूम है कि मैं कैंसर के बाद अब कभी भी मां नहीं बन सकूंगी? अगर अब मैंने ऐसी कोशिश भी की तो मेरे जान को खतरा हो सकता है। क्या आपको मालूम है? हाँ, पता है मुझे। मेरी डॉक्टर से बात हुई है। अर्चना जी,
देखिए ऐसा है कि मुझे अपनी पहली पत्नी से एक पुत्र है, इसलिए मेरे मन में और संतान की अभिलाषा नहीं है। और मैं आज आपसे एक वादा करता हूं कि भविष्य में भी ऐसे कोई विचार मेरे मन में नहीं आएंगे। आप बिल्कुल निश्चित रहिए। फिर भी मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए शंतनु जी। जी बिल्कुल। थैंक यू। बाय। जयंत जी की मध्यस्थता के बाद अर्चुताई और शंतनु जीजाजी दोनों ही विवाह बंधन में बन जाते हैं। और क्योंकि दोनों ही सामाजिक कार्य में रुचि रखते हैं, दोनों ने अपने आप को कैंसर की जन जागृति के लिए और उन कार्यों में पूरी तरह से समर्पित कर दिया। अर्चो, अर्चो, अरे चलो भाई। हाँ आई। आज हमारा कैंसर अवेयरनेस कैंप है ना। हाँ और तैयार तुम्हारा हो वहाँ रही लेक्चर भी है। चलो जल्दी करो, देरी हो रही है। अरे हाँ आ ही रही हूँ। और मैंने लेक्चर की पूरी तैयारी भी कर दी है। वेरी गुड। सुनो, तुमको जो लेक्चर देना है उसके लिए मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, जरा देखो। अरे वाह शंतनु, मैंने इतनी तैयारी तो मेरे लिए कभी भी नहीं की थी। कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज करके दिया तुमने मुझे। थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू की क्या बात है मैडम, हमने तो जिंदगी भर आपका साथ निभाने का वादा किया है और ये साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जिंदगी भर आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे मैडम। कुछ भी तुम भी ना। अरे सुनो, कितना टाइम हो गया तुम्हारी वो फ्रेंड नहीं आई अंजलि जी? हाँ आती होगी। हाँ भाई शायद देखो भाई। अरे आओ अरे आओ अंजलि, 100 साल की उम्र है तुम्हारी। अरे आइए अंजलि जी, आइए बैठिए। हम तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे अंजलि। अरे इतनी उम्र जी के क्या करूं मैं। वेरी सॉरी फॉर लेट। हाँ बैठिए। चलो चलना है ना। हाँ चलना है ना। लेकिन अरे बैठो अर्जुन, तुमसे तुमसे एक सवाल पूछना चाहती थी। तुम इतना काम करती हो, क्या तुम्हें कभी थकावट वगैरह कुछ महसूस नहीं होती? तुम्हें इतनी स्फूर्ति और इतनी खुश रहती हो तुम, इतनी ताकत कहाँ से आती है? अंजलि, ये गलत धारणा है कि कैंसर के बाद कोई अपना जीवन नॉर्मल लाइफ जैसा नहीं जी सकता। लेकिन वन कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ आफ्टर कैंसर। और उसके लिए क्या जरूरत है? इच्छा शक्ति और सेल्फ कॉन्फिडेंस की। और मेरा उदाहरण तो तुम्हारे सामने ही है ना? हाँ बिल्कुल सही। चल निकलते हैं। चलो हाँ चलो।
सुबह कौन आया भाई? अरे अंजलि जी, क्या बात है, आइए आइए आइए, इतनी सुबह सुबह, आइए बैठिए। अरे बैठूंगी बाद में, पहले अर्चू को बुलाओ और मेरा मुंह मीठा कराओ। मुंह मीठा? अरे खुशखबरी ही इतनी बड़ी है। हाँ बुलाता हूँ अर्चू। हाँ बुलाता हूँ। अर्चू, देख कौन आया है, देख देख देख। अरे अंजलि, आज इतने सवेरे सवेरे कैसे? अरे रात भी होती तो दौड़े दौड़े आती मैं। बैठो ना। बताओ ना क्या है? अरे खुशखबरी जो इतनी बड़ी है, तुम इतना कैंसर अवेयरनेस का काम करती हो, तुम्हारा काम देख के HCG कैंसर हॉस्पिटल ने तुम्हें एक बहुत बड़ा अवार्ड घोषित किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा मिलने वाला है और ये समारोह कल की है। अरे यू डिजर्व इट डियर। थैंक यू वेरी मच अंजलि। अब तो मुंह मीठा कराओ। हाँ हाँ बिल्कुल। बहुत काम बाकी है, मैं निकलती हूँ। ओके, थैंक यू। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, मुझे अवार्ड मिला है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा शंतनु। ये सच है, ये सच है कि आज तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल मिले। ये सच है। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। सो प्राउड ऑफ यू डियर, सो प्राउड ऑफ यू। दोस्तों, ये थी अर्चना की कहानी। अर्चना मतलब अर्चना साठे दास। और जिस अर्चना की कहानी हमने अभी देखी वो कोई और नहीं, वो यही अर्चना साठे दास है। और उनके पति शंतनु दास, वो यही शंतनु दास है। अर्चना के जीवन में वैसे ही उलझने कम थी कि नियति ने उसे कैंसर जैसी बीमारी में उलझा दिया। अर्चना जैसी साहसी योद्धा ने कैंसर जैसे दुर्धर रोग से जंग लड़ी और उस पर विजय प्राप्त की। आपका जीवन प्रेरणादायी है अर्चना जी। यू हैव टच्ड, इंस्पायर्ड एंड कॉन्कर्ड आवर माइंड। शी डिजर्व्स अ स्टैंडिंग ओवेशन फ्रेंड्स। प्लीज गिव हर अ स्टैंडिंग ओवेशन। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। Invite all the artists on the stage. Archana ji, आप बैठिए। Performance. I'll call the names of the artist. Archana Sathe Das as Archana. Please do the honors. I invite Mehta sir, Rajan ma'am and Chandrasekhar Deshpande ji. Next, Shantanu Das as Shantanu. Ma'am, please do the honors. Rajesh Dixit as Baba and Doctor. Deshpande sir, please do the honors. रेणुका इंदुरकर, रेणुका इंदुरकर as आई।
Rajan ma'am, Renuka Indurkar as Ai. Mimansa Joshi as Aparna and Niveda. A young girl with buckling energy. Raghav Uparkar as Amit, again a young boy. Vinay Modak as Naveen. Anil Indane as Anil Ji. Jayant Gulkari as Jayan. And myself, Archana Marathe as Anjali. Abhay Ji Pandey for background music. And director of this play, Satish G. Khekare. Please, he deserves a big round of applause. He has worked with all the newcomers except for few, one or two. I thank our esteemed guests and all the artists from the bottom of my heart. Thank you so much. Archana ji. Friends, Archana ji के बारे में और कुछ बताना चाहूंगी. She strongly believes the best cure of unhappiness is to make someone else happy. Service is the rent I pay for the space I occupy on this earth, she believes. I invite her to hand over the check to cancer survivor for their rehabilitation by CARF. The names are Vaidavi Kamre, Bhumi Kone and Utkarsh Nandanwar. Please come on the stage. Vaidhavi, Kamre, Bhumi Kone and Utkarsh Nandanwar. दोस्तों, तो 11 साल की उम्र में ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ. कैंसर के लंबे और वेदनादायी इलाज की वजह से इनकी पढ़ाई पर असर पड़ा. इन्होंने हार नहीं मानी. भूमि 10वीं कक्षा में है और वैदवी को 10वीं में 77% मिले. उत्कर्ष नंदनवार की उम्र 10 साल है, उसको लंग कैंसर है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है. इनके सुखी और स्वस्थ जीवन की हम कामना करते हैं. आई रिक्वेस्ट अर्चना जी टू हैंड ओवर चेक टू वैधवी कामड़े. Next, I call Shantanu Das ji to give to Bhumi Kone. Next, I invite Dr. Suchitra Mehta to do the honors for Utkarsh Nandanwar. At a very young age, these children have faced a disease like cancer and they have come out of it. Please give a big round of applause. We have to uplift their moral. Indeed, a spectacular moment. Thank you. Thank you all. Leo Tolstoy said, gratitude is a trait that differentiates humans from inhuman. Coming to vote of thanks. First of all, I'll start by giving glory to the Almighty for making this event memorable.
On behalf of Inner Wheel Club of Nagpur, I extend my deep gratitude to our distinguished guests, Dr. Ajay Mehta sir, Dr. Suchitra Mehta, for sparing their valuable time, guidance and inputs. Thank you for leading from the front. Your presence here is a testament of your commitment. Thank you so much. My profuse thanks to two gentlemen who worked behind the curtain, taking painstaking efforts and assisted in every possible manner in making this event run smoothly. They are Shri Manohar Dixit ji and Shri Chandrasekhar Deshpande ji, both alumni of renowned VRC. A very special thank you to our sponsors, HCG Cancer Hospital, whose contributions have been instrumental in bringing this event to fruition. I express my immense gratitude to Shri Samir Bendre ji, Yogesh Karmarkar ji, Manish Zoshi ji and Deepak Yadav ji of Persistent Systems Limited for availing this marvelous auditorium and making all the arrangements. I again extend my gratitude to Shri Pramod Thakre ji, Principal of ITI Nagpur, for providing hall for drama practice. I express my sincere thanks to Shri Sandeep Baraskar ji for sound system, Shri Kishore Battase ji for light arrangement, Shri Swapnil Bohate ji for stage setup, Shri Nakul Shrivas ji for makeup. A very special thank to our donors who have given above 5,000. Rajesh Dixit ji, Manohar Dixit ji, Sarang Dev ji, Rasika Panurkar and Nikhil Mahanto. And last but not the least, I extend my heartfelt gratitude to the participants and the discerning audience for gracing us with your presence today and making this event a resounding success. I hope we all will be enriched by each other's participation and make it an unforgettable moment. As we bring this event to a close, let us carry the spirit of togetherness. एक कदम तुम बढ़ाओ, एक कदम हम. कैंसर से लड़ेंगे साथ साथ हम. और अंत में 4 पंक्तियां अर्चना जी के लिए. संघर्ष की मार्ग पर जो वीर चलता है, वो ही इस संसार को बदलता है. जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती, जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है, सूर्य बनकर वही निकलता है. अंत में अनंत अनंत मंगल कामनाओं से सबसे विदा लेती हूँ. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.